Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajbanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in today's video we will start reading with our next chapter from the book First Flight. It is chapter number 9 and the name of the chapter is Madam Rides the Bus. Okay, so this is a story, very interesting story, and this is written by Mr. Wali Kannan. So he is the writer of this chapter. Okay, so let's begin our first part of the chapter, Madam Rides the Bus. Before you read, so before starting reading the chapter, reading the story, let's get some idea, let's get some knowledge about the chapter, that what the chapter is all about. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. Okay, so this is a very sensitive story, this is a story full of emotions. Okay, and in this story there is a girl and she is a 8-year-old girl and she is having her first bus journey. Okay, for the first time she is sitting in a bus, she is enjoying a bus journey for the first time into the world outside her village. Okay, so it is her first experience that she is going outside her village for the very first time. It's also her induction into the mystery of life and death. Okay, and during this first journey, during this first experience of a bus journey, she also get to know the mystery of life and death. Okay, so there is a girl, 8-year-old girl, और वो फर्स्ट टाइम अपने विलेज से बाहर जाने का उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक चांस उसे मिलता है कि वो एक बस जर्नी करे, वो फर्स्ट टाइम अपने विलेज से बाहर वो जाए. ओके, एंड ड्यूरिंग दिस बस जर्नी शी ऑल्सो गॉट एक्सपीरियंस ऑफ द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. राइट, शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. ओके, एंड आफ्टर द बस जर्नी उसको एक नॉलेज मिलती है, एक एक्सपीरियंस उसे मिलता है क्या, दैट देयर इज अ गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ. ओके, वी ऑल नो दैट व्हाट इज डेथ, दैट इज समथिंग डिफरेंट and the understanding of it is something different. So there is a gap between these two things. First is what, the knowledge of death, and second is the understanding of death. Okay, so ये जो दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप का उसे नॉलेज मिलता है, उस गैप का उसे एक्सपीरियंस होता है ड्यूरिंग हर फर्स्ट बस जर्नी. ओके, सो आफ्टर रीडिंग दिस अकाउंट बहुत ही इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बहुत ही हम भी क्यूरियस हैं इस चैप्टर को पढ़ने के, स्टोरी को पढ़ने के लिए कि उस 8-year गर्ल की जो जर्नी है वो क्या जर्नी थी और उसका एक्सपीरियंस जो था वो क्या था. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी. पार्ट 1. There was a girl named Valli Ami who was called Valli for short. Okay, so जो गर्ल हमने पढ़ा था, जिस गर्ल के बारे में स्टोरी पढ़ने वाली हैं, so उस गर्ल का नाम क्या है, her name is Valli Ami and for short उसको हम क्या बोलते हैं, वल्ली. Okay, she was 8 years old and very curious about things. Okay, so what is her age? She was 8 years old and she was very curious. Okay, about everything. What is curious? Curious is someone who is very eager to know or learn new things. Okay, so जिसके मन में किसी भी नई चीज़ को देख के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, वो किसी भी नई चीज़ के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, उसके बारे में हर एक चीज़ उसे पता होनी चाहिए, उस व्यक्ति को हम कहते हैं वेरी क्यूरियस. सो ये जो गर्ल थी वल्ली, हु वॉज 8 years old girl, she was very curious about everything. Right, her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. Okay, so now her favorite pastime, उसका जो favorite pastime था, दिन भर वो क्या करे, so what was her favorite pastime? That was to stand in the front doorway of her house. Okay, so she used to stand in the front doorway of her house and from there she used to watch what was happening in the street outside. So अपना टाइम पास करने के लिए वो क्या किया करती थी, जो घर का फ्रंट डोरवे था वो वहाँ खड़ी हो जाया करती थी और बिल्कुल घर के बाहर जो स्ट्रीट थी वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो देखा करती थी. एंड दैट वाज हर फेवरेट पास टाइम. ओके, There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. Okay, so after reading her favorite pastime, आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या पास टाइम है, पास टाइम करने के लिए तो उसको खेलना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट हमें राइटर क्या बता रहे हैं कि उसकी जो स्ट्रीट थी और वी कैन से उसकी जो कॉलोनी थी उसमें कोई भी प्लेमेट्स नहीं थे, उसकी एज के कोई भी बाकी बच्चे नहीं थे जिनके साथ वो खेल सके. ओके, दैट्स वाई दिस वॉज द ऑल अबाउट दैट शी हैड टू डू.
इसीलिए अपना टाइम पास करने के लिए उसे यही करना पड़ता था, क्योंकि खेलने के लिए तो कंपनी चाहिए, वो अकेला कितना खेल पाएगी। बट उसकी उस स्ट्रीट में, उसकी उस कॉलोनी में कोई बच्चे नहीं थे जिनके साथ वो खेल सके। दैट्स वाई दिस वॉज हर फेवरेट पास टाइम दैट शी यूज्ड टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड शी यूज्ड टू वॉच all the happenings that was going on in the street. Okay, but for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Okay, so she was not having any company to play with, but she was very satisfied with it. She was not having any complaint about this. Why? Because उसने अपना ही एक तरीका figure out कर लिया था। पहले उसके मन में कभी ना कभी था कि she is not having any company to play with, but later on she discovered a new thing to for her pastime. She फिगर आउट समथिंग। इसीलिए वो क्या करती थी, जो फ्रंट डोर पे वो खड़ी होकर स्ट्रीट की हैपनिंग्स को देखा करती थी, दिस थिंग वॉज एज इंजॉयबल एज फॉर हर एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। ओके, सो व्हाट इज एलेबोरेट? एलेबोरेट मीन्स डिटेल्ड। ओके, सो इस तरह से अपने डोरवे पे खड़े होकर बाहर स्ट्रीट की हैपनिंग्स को देखना, ये जो चीज़ थी डैट वॉज एज इंजॉयबल फॉर हर एज द अदर चिल्ड्रन जो थे वो बाकी जो गेम खेला करते थे, जो कि बहुत ही एलेबोरेट होते थे, बहुत ही डिटेल्ड के गेम होते थे, राइट? जैसे कि फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह के जो गेम बाकी बड़े बच्चे खेला करते थे, जितना एंजॉय वो उस गेम में किया करते थे, वल्ली भी इक्वली एंजॉय किया करती थी। इस तरह से अपने घर के गेट पे खड़े होकर स्ट्रीट की हैपनिंग को देखना, ये चीज़ उसके लिए भी इक्वली एंजॉयबल था, राइट? वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और उसको इतना मज़ा क्यों आता था इस तरह से अपने घर के गेट पे खड़े होकर स्ट्रीट की हैपनिंग्स को देखना? दिस थिंग वॉज सो एंजॉयबल फॉर हर। वाई? सो व्हाट वाज द रीज़न? जिस तरह से जब वो स्ट्रीट पे देखा करती थी, सो शी यूज टू गेट मैनी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। और एक्सपीरियंसेस कैसे होते थे? बहुत ही अनयूजुअल हुआ करते थे, बहुत ही स्पेशल हुआ करते थे। डेली शी यूज टू गेट सम और अदर न्यू एक्सपीरियंस। ओके, तो उसे हर बार कोई कोई नया एक्सपीरियंस मिला करता था, इसीलिए ये उसका फेवरेट पास टाइम था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। ओके, सो वैसे तो वल्ली को सारी ही हैपनिंग्स बहुत अच्छी लगा करती थी, शी यूज टू एंजॉय अ लॉट। ओके, लेकिन जो उसकी फेवरेट चीज़ थी, जिसको देख के वो सबसे ज़्यादा उसको फैसिनेटिंग लगा करती थी, वो क्या चीज़ थी? व्हाट इज़ फैसिनेटिंग? फैसिनेटिंग इज इंटरेस्टिंग। ओके, सो व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर हर? दैट वॉज द बस। ओके, तो उसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी? स्ट्रीट में बस थी। और कौन सी बस? दैट बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। ओके, सो जो ये गर्ल है वल्ली, शी यूज टू लिव इन अ विलेज, ये गाँव में रहा करती थी, और इसका जो विलेज था वहाँ से जो विलेज के नियरेस्ट टाउन था, वहाँ उन दोनों के बीच में एक बस चला करती थी, एंड दैट बस वॉज हर फेवरेट थिंग, और वी कैन से द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर हर। ओके, it passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. Okay, अब ये जो बस है, जिस बस को देख के इसको इतना ज़्यादा ये इंजॉय किया करती थी, that was the most interesting और the most fascinating thing for her. So ये जो बस थी ये वल्ली की स्ट्रीट से पास हुआ करती थी each hour. Okay, so each hour ये बस पास हुआ करती थी, once going to the town, और each hour ये कैसे होती थी? So once तो ये बस क्या हो रही है? विलेज से टाउन तक जा रही है। ओके, और सेकेंड टाइम टाउन से विलेज तक आ रही है, वापस कमिंग बैक हो रही है, राइट? सो दोनों ही टाइम में जो बस थी ये वल्ली के घर के सामने जो स्ट्रीट है वहाँ से पास हुआ करती थी। सो ईच आवर वल्ली जो थी इस बस को देखा करती थी। क्लियर? The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valli. Okay, अब वल्ली जो है वो अपने घर के गेट पे खड़ी हुई है, डोरवे पे खड़ी हुई है वो, और ईच आर वो देख रही है बस जो है पहले विलेज से टाउन तक जा रही है, नेक्स्ट आर वापस वो टाउन से विलेज तक आ रही है। सो शी यूज टू वॉच ऑल दीज थिंग्स। सो ये जो साइट ऑफ द बस है, इस तरह से बस को जब वो देखा करती थी, और ये जो बस थी डैट वॉज फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट पैसेंजर्स, राइट? सो जब भी वो बस उसके घर के सामने से गुजरा करती थी, पास हुआ करती थी, सो एवरी टाइम देयर वर न्यू पैसेंजर्स इन द बस। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जब पहली टाइम वो विलेज से टाउन तक जा रही है, सो उसमें जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो टाउन में उतर जाएंगे, और टाउन से जो दूसरे पैसेंजर्स हैं नेक्स्ट टाइम जब बस टाउन से विलेज तक आएगी तो उसमें न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स बैठे हुए होंगे, उसमें न्यू पीपल बैठे हुए होंगे, राइट? सो ये जो साइट था कि एवरी टाइम बस में न्यू पैसेंजर्स बैठे हैं, न्यू पीपल बैठे हैं, ये जो साइट था, ये जो सीन
था, दैट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। ओके, इस सीन को देखकर उसे एक अनएंडिंग जॉय मिलता था, एक अनएंडिंग हैप्पीनेस उसे मिला करती थी। ओके, सो दिस वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। ओके, day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. Okay, so day after day she watched the bus, so it was her daily task, daily का उसका यही काम हुआ करता था, that she used to stand on the front doorway of her house and there she used to watch the bus. Okay, in the each hour. Okay, each hour वो बस को देखा करती थी, कभी बस विलेज से टाउन तक जा रही है, कभी टाउन से वापस विलेज तक आ रही है। सो इस तरह से जो डेली बस को देखा करती थी, देखते देखते क्या हुआ, ग्रेजुअली उसके माइंड में टाइनी विश जो थी वो क्रैप्ट हो गई, टाइनी सी विश उसके माइंड में डेवलप हो गई। ओके, एंड ग्रो देयर, और वो जो विश थी वो धीरे धीरे उसके माइंड में ग्रो करने लगी, उसके माइंड में वो विश जो थी वो एक बड़ी डिज़ायर बनने लगी। राइट, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस एंड वॉट वॉज दैट विश, क्या डिज़ायर थी अब वल्ली के माइंड में, वो क्या करना चाहती थी, हर विश वॉज टू राइड ऑन दैट बस, वो भी एक बार उस बस में राइड करना चाहती थी, वो भी उस बस में एक बार एज अ पैसेंजर बैठना चाहती थी। ओके, इवन इफ जस्ट वंस, और वो ये काम सिर्फ चाहे उसको एक बार ही चांस मिले, सो वो उसमें भी हैप्पी थी कि चाहे सिर्फ एक बार वो ये अपॉर्चुनिटी उसको ये मिले, बट एक बार के लिए वो उस बस में एज अ पैसेंजर ट्रेवल करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस जस्ट वंस। ओके, सो दिस वॉज द डिज़ायर दैट स्टार्टेड to grow in her mind, right? This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. अब ये जो विश थी उसके माइंड में कि उसको भी उस बस में बैठना था, वो डेली देखा करती थी, बस जा रही है, नेक्स्ट आवर वापस आ रही है, उसमें पैसेंजर्स बैठे हैं, सो उसको बस को देख देख के, उन पैसेंजर्स के हैप्पी फेसेस को देख देख के उसके मन में जो डिज़ायर, जो विश डेवलप हो गई थी, धीरे धीरे ये विश और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनते जा रही थी, उसके मन में ये विश और ज़्यादा ग्रो होती जा रही थी कि नहीं मुझे भी बैठना है, मुझे भी इस बस में ट्रैवल करना है। और धीरे धीरे क्या हो गया, वो जो एक टाइनी सी विश थी अब वो क्या बन चुकी थी, दैट वाज अ ओवरवेलमिंग डिज़ायर। व्हाट इज ओवरवेलमिंग? ओवरवेलमिंग मीन्स वेरी ग्रेट। ओके, सो जो टाइनी सी विश उसके माइंड में एक तरह से ग्रो होना स्टार्ट हुई थी, नाउ दैट वाज अ वेरी ग्रेट डिज़ायर जो थी वो बन चुकी थी। नाउ दैट हैज चेंज इनटू अ वेरी ग्रेट डिज़ायर। ओके, सो नाउ शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इन एनी कॉस्ट, हो किसी भी कॉस्ट पे उस बस में एक बार ट्रैवल करना चाहती थी, वो उस बस पे एक बार राइड करना चाहती थी। ओके, Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Okay, so अब जो वल्ली जो थी वो क्या किया करती थी, she used to stare. Stare means to look. Okay, wistfully means longingly. So वो बहुत ही desire के साथ, बहुत ही longingly उन लोगों को देखा करती थी जो उस बस में या तो got on हो रहे हैं या फिर got off हो रहे थे। राइट, यानी कि जो बस में चढ़ रहे हैं, जो बस में से उतर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही डिज़ायर के साथ, वी कैन से वेरी लॉन्गिंगली शी यूज टू स्टेयर। ओके, व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो जो बस थी वो वल्ली वाली स्ट्रीट के कॉर्नर पर रुका करती थी, सो बस रुकने से जो जो पैसेंजर उतर रहे हैं और जो जो न्यू पैसेंजर्स उसमें चढ़ रहे हैं, उन सबके फेसेस को बहुत ही डिज़ायर के साथ शी यूज टू स्टेयर। ओके, Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. और वो जो पैसेंजर्स हुआ करते थे जो बस में चढ़ रहे हैं या फिर बस से उतर रहे हैं, उन पैसेंजर्स के जो फेस थे, they would kindle in her longings, dreams and hopes. What is kindle? Kindle means to set feelings. Okay, so उनके फेसेस को देख देख के उसकी जो डिज़ायर थी, उसकी जो विश थी, ये और ज़्यादा फुल ऑफ फीलिंग्स हो जाया करती थी, in her longings, in her dreams and even in her hopes. ओके, सो अब उसके मन में एक ही होप थी, उसका एक ही ड्रीम था, उसकी एक ही डिज़ायर थी, एंड दैट वाज टू ट्रैवल इन दैट बस, दैट वाज टू राइड इन दैट बस एज अ पैसेंजर जस्ट वंस। ओके,
if one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, okay. So अगर अब उसके काफ़ी फ्रेंड्स भी थे, तो उनमें से अगर कोई फ्रेंड जो ऐसा होता है जिसको ये चांस मिला है कि वो उस बस में राइड करे, ओके. सो अगर उसकी कोई फ्रेंड है, वो उस बस में ट्रैवल करके आई है, एंड आफ्टर द ट्रैवलिंग इफ़ शी इज़ डिस्क्राइबिंग द साइट्स ऑफ द टाउन, ओके. अगर वो डिस्क्राइब कर रही है कि जब मैं इस बस में बैठ के टाउन गई, सो व्हाट वाज द सीन एट द टाउन, व्हाट वाज द मार्केट लाइक, व्हाट वाज द हाउसेस लाइक, अगर वो इस तरह का कुछ डिस्क्रिप्शन दे रही है, कुछ टाउन को डिस्क्राइब कर रही होती, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड. सो वली को डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं लगा करता था. वाई? बिकॉज शी वॉज टू जेलस. उसको जेलसी फील हुआ करती थी बिकॉज उससे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है बस में बैठने की, जो वो भी तब जब उसकी ये सबसे बड़ी डिज़ायर बन चुकी थी उसकी लाइफ की कि उसको एक बार बस में राइड करना है, एक बार बस में ट्रैवल करना है. इवन आफ्टर दैट शी वॉज नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, शी वॉज नॉट गेटिंग द चांस टू राइड इन द बस. ऐसे में उसके सामने इफ़ समवन ऑफ हर फ्रेंड इज डिस्क्राइबिंग द साइट्स ऑफ द टाउन, ओके, इफ समवन इज डिस्क्राइबिंग हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ द बस जर्नी, सो वो सुन के जो वली जो थी वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील किया करती थी, ओके. और वो डिस्क्रिप्शन सुना ही नहीं करती थी, और बीच में ही शी यूज टू शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड, ओके. सो बीच में ही वो शाउट करना स्टार्ट कर दिया करती थी, और वो क्या बोला करती थी, शी यूज टू शाउट लाइक प्राउड प्राउड, ओके. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval, okay. अब जब वली जो है वो डिस्क्रिप्शन को बीच में ही रोक के, बीच में ही इंटरप्ट करके वो एक तरह से शाउट करना स्टार्ट कर देती थी प्राउड प्राउड. तो जब वो ऐसा बोला करती थी, then neither she nor her friends, okay, किसी को भी पता नहीं होता था कि इस बात का एक्चुअल मीनिंग क्या है. इस तरह से जब वो प्राउड प्राउड बोल रही है, सो इस बात का मीनिंग क्या है ये ना तो वली को पता होता था, ना उसके फ्रेंड्स को पता होता था. उन्हें एक्चुअल मीनिंग इस बात का समझ में नहीं आता था. दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. लेकिन बाद में क्या हुआ होता था, उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इस वर्ड को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ओके. जब भी उन्हें किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना होता था, और वी कैन से जब भी उन्हें किसी चीज़ को डिनाई करना होता था, किसी चीज़ के लिए अपना ऑब्जेक्शन शो करना होता था, देन दे ऑल्सो यूज the same words, they also started shouting like proud and proud, okay. So इस तरह से जो वली थी उसके मन में इतनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन चुकी थी, वो कैसे भी करके वो बस एक अपॉर्चुनिटी चाहती थी कि जस्ट वंस इफ़ शी वुड बी एबल टू राइड ऑन दैट बस, ओके. सो इसीलिए उसके मन में अब धीरे धीरे जेलसी भी होने लगी थी उन लोगों के लिए जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो उस बस में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट. Over many days and months, Wali listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there, okay. अब वली के मन में डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी that every time there was only one thing in her mind, उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात रहती थी that I have to travel in that bus, I have to ride on that bus. इसीलिए क्या होता जा रहा था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे डे और मंथ पास होते जा रहे थे, सो एवरी सिंगल डे वली यूज टू लिसन केयरफुली द कॉन्वर्जेशन बिटवीन हर नेबर्स. अब उसके जो नेबर्स हैं जो कि बस में ट्रैवल करके आए हैं, जिन्होंने टाउन देखा है, सो वो आपस में जो कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, आपस में वो जो भी टॉक किया करते थे, सो उनकी टॉकिंग्स को, उनके कॉन्वर्जेशन को वली यूज टू लिसन वेरी केयरफुली, राइट. एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम द नेबर्स, वो उन लोगों के कॉन्वर्जेशन भी बहुत ध्यान से सुना करती थी जो कि बहुत रेगुलरली इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ओके. जिनको टाउन में कुछ काम होगा, ओके, हो सकता है किसी की शॉप है टाउन में, या किसी को किसी और रीजन से बहुत ही रेगुलरली, बहुत ही फ्रीक्वेंटली बस में ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उनके कॉन्वर्जेशन को वली बहुत ध्यान से सुना करती थी ताकि उसको सारे आइडियाज़ हो जाए वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, टाउन तक बस कैसे जाती है, रास्ते में क्या क्या आता है, टाउन में क्या है, किस तरह का टाउन है. सो सारी इंफॉर्मेशन उसको गैदर करनी थी, इसलिए उन सभी लोगों की आपस में जो कॉन्वर्जेशन हुआ करती थी, उस कॉन्वर्जेशन को शी यूज टू लिसन वेरी केयरफुली, ओके.
and she also asked a few discreet questions here and there. Okay, so वो conversation तो सुना ही करती थी. Okay, साथ ही में वो क्या किया करती थी, she used to ask a few discreet questions. What is discreet? Discreet means very careful. Okay, so apart from listening those conversations, she also used to ask some questions very carefully here and there. Okay, वो कुछ कुछ questions पूछा करती थी here and there, मतलब बीच बीच में. Why and why so carefully? ताकि उसके मन में ये था कि किसी के माइंड में ये आइडिया नहीं आ जाए कि वो भी प्लानिंग कर रही है बस राइड करने की, वो भी एक बार बस में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रही है, ये आइडिया किसी को ना मिल जाए, इसीलिए बहुत केयरफुली शी यूज्ड टू आस्क सम ऑफ हर क्वेश्चंस. ओके, दिस वे she picked up various small details about the bus journey. Okay, so this was her way, and by this way she was able to pick up various small details about the bus journey. इस तरह लोगों के आपस में conversation सुन के and asking her on some questions, she was able to gather a lot of information about the bus journey. Okay, the town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way. Okay, and what were the information? So what were the information? First, the town was 6 miles from her village. So what was the first information she got to know? This was that the town जहाँ तक ये बस जाती है, that was 6 miles from her village. Okay, next, the fare was 30 paise one way. Okay, and what was the fare of that bus journey from village to that town? It was 30 paise one way. Okay, one side from village to town it was 30 paise, which is almost nothing at all. She heard one well dressed man say. Okay, और जब उसने ये बात सुनी थी about the fare, then there was a man and he was very well dressed. Okay, उसने बहुत ही properly वो dress up हुआ था, और उस man ने क्या कहा था जब उसने fare बताया था, that which is almost nothing at all. जब उसने बताया that it is 30 paise fare one side, तो उसने साथ में ये भी ऐड किया था कि ये जो fare है 30 पैसे, ये इतना small amount है that it is like nothing at all. Okay, so for him it was very small amount, 30 paise. But to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. Okay, so for that man, for that well dressed man, 30 paise was such a small amount that it was like nothing at all. But for Valli, लेकिन वल्ली के लिए ये 30 पैसे की वैल्यू क्या थी? और वल्ली कौन? जिसने कि बहुत ही हार्डली एक मंथ में इतना मनी देखा होगा. ओके, व्हाट इज 1 month to the next मीन्स 1 month में. ओके, जिसने 1 month में हार्डली कभी इतने पैसे देखे होंगे, 30 पैसे देखे होंगे. सो फॉर हर दिस 30 पैसे वॉज लाइक अ फॉर्च्यून. फॉर्च्यून मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. ओके, सो फॉर दैट मैन 30 पैसे वॉज सच ए स्मॉल अमाउंट एंड इट वॉज लाइक नथिंग. बट फॉर वल्ली 30 पैसे वॉज सच ए बिग अमाउंट एंड इट वॉज लाइक अ फॉर्च्यून फॉर हर. ओके, the trip to the town took 45 minutes. Okay, and what are the information she gathered? She also got to know that जो बस जर्नी है, ये जो ट्रिप है from village to town, it took 45 minutes. इस जर्नी में कितना टाइम लगता है? टोटल 45 minutes लगते हैं वन साइड जर्नी में from village to town. Okay, on reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. Okay, so what was her plan? उसका प्लान ये था कि वन शी विल गो टू द टाउन इन दिस बस एंड आफ्टर रीचिंग द टाउन शी विल बी ऑन हर सीट एंड शी विल कम बैक टू विलेज इन द सेम बस. ओके, सो व्हाट वाज देयर इन हर माइंड? शी वाज थिंकिंग दैट व्हेन ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड देन इफ शी पेड अनदर 30 पैसे. ओके, सो 30 पैसे तो वन साइड जर्नी का है फ्रॉम विलेज टू टाउन, लेकिन आफ्टर रीचिंग द टाउन अगर वो अपनी ही सीट पे रहती है और सेम बस में अगर उसको वापस आना है, राइट, देन शी हैज़ टू पे 30 पैसे वन मोर टाइम, राइट, क्योंकि अब उसको टाउन से विलेज तक की जर्नी करनी है. देन शी हैज़ टू पे मोर 30 पैसे वन मोर टाइम, देन शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. ओके, सो दिस वॉज द प्लान दैट वॉज देयर इन हर माइंड. ओके, this meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. Okay, so वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रही थी बिकॉज उसे कैसे भी करके एक बार ये एक्सपीरियंस करना था, एक बार उसे ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना था कि वो बस जर्नी कर पाए. ओके, सो उसने सभी प्रिपरेशन कर ली थी, सभी प्लानिंग उसने कर ली थी और उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको क्या करना था, उसने सभी प्लानिंग सभी कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करके ये फिगर आउट किया था दैट शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस. ओके, सो 1 o'clock का जो टाइमिंग है बस का, दैट वाज द बेस्ट टाइम फॉर हर, दैट वाज द बेस्ट सुटेबल टाइम फॉर हर. ओके, सो उसने डिसाइड किया कि आफ्टरनून में 1 o'clock की बस वो लेगी. रीच द टाउन एट 1:45 एंड एज वी हैव रेड कि 45 मिनट्स लगते हैं वन साइड जर्नी को. सो अगर वो 1 o'clock की बस लेती है देन शी विल रीच द टाउन एट 1:45. ओके, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45. अब वहाँ से टाउन से वो बस कब चल रही है, 2 o'clock चल रही है. ओके, सो अगर वो 2 o'clock टाउन से चल रही है सो वो अब उसके विलेज तक कब पहुँचेगी, इट विल कम बैक एट 2:45. ओके, सो दिस वॉज हर प्लान. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. Okay, so अपने इस प्लान को उसने बहुत बार कैलकुलेट किया, हर तरह से उसने सारी कैलकुलेशन की अबाउट द टाइमिंग्स, अबाउट द फेयर, अबाउट एवरीथिंग. उसने बहुत डीपली उसने एक एक चीज़ के बारे में रिसर्च करके अपना प्लान बनाया था. ओके, सो सभी चीज़ों को उसने बार बार कैलकुलेट किया, रिकैलकुलेट किया. शी प्लान अ लॉट ऑफ टाइम एंड शी ऑल्सो रीप्लान अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो इतनी मेहनत करके फाइनली शी वॉज हैविंग हर प्लान, फाइनली शी वॉज हैविंग वन आइडिया दैट हाउ टू राइड द बस. ओके, सो वली इज ऑल सेट, वली इज रेडी विथ हर प्लान. सो क्या वो अपने प्लान में सक्सेसफुल होती है, क्या फाइनली उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बस में ट्रैवल करने की? वी विल गेट टू नो व्हेन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.